See here, question number 4th was over. Now question number 5th and 6th. See here, question number 5th. Measure and state which of the angles are congruent. Measure and state which of the angles are congruent. You have to measure the measurement of the angle by using protractor. Okay, you have to measure the measurement of angle using protractor and find out which two angles are equal. जैसे एंगल ए एंड एंगल बी है तो आप प्रोट्रैक्टर से मेजर कीजिए कि दोनों का एंगुलर मेजरमेंट सेम है क्या. So do you know how to measure the given angles using protractor? Yes, sir. सभी को पता है कैसे मेजरमेंट लिया जाता है? हाँ सर. ठीक है, तो आप उसका मेजरमेंट लीजिए और वो फाइंड कर लीजिए. ठीक है, ओके. Yes, एंड sir. क्वेश्चन नंबर 6 देखो वहां पे, which of the pairs of figures are congruent. जैसे कि फर्स्ट है, फर्स्ट पेयर देखो ए, देयर आर टू रेक्टेंगल्स, आर दे congruent or not? Congruent. They are congruent because their size is same, their angles are same, their sides are same. Okay, that's why they are congruent. Question B, again two figures are there, two rectangles are there, one is smaller rectangle, another one is the bigger. Okay, so can you tell me these two squares, two rectangles are congruent or not? It is not a congruent. It is not a congruent. Both the diagrams, both rectangles are similar, but both rectangles are not congruent. Similar and congruent, there is some difference between these two. दोनों में कुछ डिफरेंस होता है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट में. सिमिलैरिटी का मतलब, लिसन हियर, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में समझा देता हूं. सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट, सिमिलैरिटी मतलब एक जैसे दिखने वाले, भले ही छोटा हो या बड़ा हो लेकिन एक जैसे ही दिखते हैं तो वो सिमिलैरिटी होगी. कॉन्ग्रुएंट मतलब उसके पूरे A to Z पार्ट उसके इक्वल होने चाहिए. जैसे कि डायग्राम है, क्वेश्चन बी में दोनों जो डायग्राम है वो सिमिलर दिख रहे हैं, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक छोटा और एक बड़ा है, बस इतना डिफरेंस है, लेकिन है सेम, वो सिमिलर हो गए, लेकिन उनके साइज छोटे बड़े हैं, उनके एंगल सेम है लेकिन उनके साइड्स डिफरेंट है, इसलिए वो डिफरेंट है, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. नाउ क्वेश्चन सी, कॉन्ग्रुएंट और नॉट? Sir, question C congruent. कॉन्ग्रुएंट है. क्वेश्चन डी? Congruent. क्वेश्चन ई? Congruent. And question F? Not congruent. No, sir, not congruent. Not congruent. Very good. Now write down the next heading, congruence of triangles. Heading is given on page number 191. Yes, sir. Congruence of triangles. Write down the heading. Sir, 2 minutes, sir, 2 minutes. Listen here, page number 192. Page number 192. Okay. See there. There are 4 conditions of congruence. 1, Yes, 2, sir. 3, 4. 4 points are given there that you have to write. Side यानी triple S. 3 sides. Second one, side angle side यानी SAS. 2 sides and the included angle. Third one, angle side angle means ASA. 2 angles and included side. Fourth one is right angle hypotenuse side means RHS. Okay, so write down that. Write down. Yes, sir. Sir, complete. Okay. Over. Okay, now see here. No, sir.
below that one more statement is given there, that is written in italic letter, that also you have to write. Italic letter में लिखा है. Additionally, if we find that two triangles are congruent using the above conditions, then their corresponding parts will also be congruent. Okay, इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा बाद में. Okay, so write down that. सर कहाँ पर लिखा है? नीचे जो कंडीशंस लिखे आपने. उसके नीचे? Okay. Okay, now see here, your first test, that is side means triple S test. Okay, side means triple S test. 3 sides are there. How many? 3 sides are there. Okay, means suppose 2 triangles are given there and all the 3 sides of first triangle is equal to all the 3 sides of other triangle, then we can say that both the triangles are congruent to each other by SSS test. Okay? Hello? Yes sir. समझ में आया मैंने क्या कहा? Suppose two triangles are given there, okay, and all the 3 sides of first triangle is equal to all the 3 sides of another triangle, then we can say that both the triangles are congruent to each other by triple S test. Okay, so listen here, we will see one of the problem. So write down first problem. तो एक प्रॉब्लम लिखिए आप. ट्रायंगल PQR इज आइसोस्केलेस. डायग्राम पहले ड्रॉ कर लीजिए सर. एग्जांपल ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस 3 साइड उसका है क्या? लिखिए, एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए पहले. ड्रॉ दिस डायग्राम. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, PQR, triangle PQR is isosceles. Isosceles with the PQ equal to PR, with segment PQ equals to segment PR. This problem is given on page number 193. Listen here. This problem is given on page number 193. Example first. S is the midpoint. S is the midpoint. तो हाँ. वो रफ डायग्राम है ना? What? वो ट्रायंगल रफ है ना? हाँ, ट्रायंगल ड्रॉ करना है. ट्रायंगल ड्रॉ करना है आपको. सर Two questions are there. Yes. हेलो. मतलब ये मेजरमेंट है क्या? उसका मेजरमेंट कुछ नहीं दिया है आपको, सिर्फ ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करनी है. उसका कुछ मेजरमेंट लेके आपको डायग्राम बनानी नहीं है. ऐसे रफ डायग्राम बनाओ आप, लेकिन दिखने में रफ नहीं दिखना चाहिए. स्केल वगैरह यूज करके ड्रॉ करना है. ठीक है, सिर्फ मेजरमेंट नहीं, ये कितने सेंटीमीटर, ये कितने सेंटीमीटर, उससे कुछ लेना देना नहीं है अपने को. ठीक है, ड्रॉ कीजिए और वो एग्जांपल लिख लो आप. चाहे तो बाद में लिख सकते एग्जांपल आप. ठीक है. हेलो, आप एग्जांपल बाद में भी लिख सकते हो. क्वेश्चन उसका मैंने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है. आप चाहे तो बाद में लिख सकते हो. ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करके दूंगा. क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, मैं अभी मिटा रहा हूं ये क्वेश्चन, आप टेक्स्ट बुक से देखकर लिख लीजिए. क्वेश्चन मिटा रहा हूं मैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं. देखो, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको समझा दूंगा. नाउ लिसन हियर, दिस इज द ट्रायंगल. ओके, इस ट्रायंगल में क्या है, एवरीथिंग इज रिटन इन हियर इन दिस क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन हियर? ट्रायंगल PQR. वेयर इज ट्रायंगल PQR? मींस पूरा ट्रायंगल.
ओके, ट्रायंगल PQR इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। लिसन हियर, आप मेरी ओर देखिए, बाद में लिखना, आप पहले समझो इसको। इसे समझोगे तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा, आगे चल के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। बाद में लिखना, मैंने कहा आपको बाद में लिखिए, आप बाद में लिख सकते हो, टाइम मिलेगा आपको, ठीक है, घर में ही रहते हो, दिन भर टाइम है आपके पास। तो आप पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन समझो तो सॉल्यूशन समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं आता, ठीक है। तो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन ऐसे रहेगा एग्जाम में, ट्रायंगल दिया रहेगा और इसके साइड में ये लिखा रहेगा, तो ये देखकर और ये पढ़कर आपको पूरा के पूरा समझ लेना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका मीनिंग क्या लिखा है, ट्रायंगल PQR, वेयर इज ट्रायंगल PQR, दिस वन, ट्रायंगल PQR is an isosceles triangle. Isosceles means what? What is isosceles? ये समझना जरूरी है। Is an isosceles triangle. Iso means, hello, Sir, all sides are unequal. all sides are unequal. Again, और कोई बता सकता है? Two sides are equal and one side is not equal. What is isosceles? Two sides are equal and one side is not equal. Very good. Iso means two. Iso means what? Two. जिसके दो साइड इक्वल है उसे आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहा जाता है। दो साइड इक्वल है मतलब तीसरी साइड इक्वल नहीं है। जब तीनों इक्वल रहते हैं तो उसे कहा जाता है इक्विलैटरल। जब तीनों साइड इक्वल होते हैं तो उसे इक्विलैटरल कहा जाता है। अगर सिर्फ दो साइड इक्वल होते हैं तो उसे आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं, और तीनों साइड अगर डिफरेंट हैं तो उसे कहा जाता है स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आया इतना? नाउ लिसन हियर, ट्रायंगल PQR इज एन आइसोस्केलेस विथ PQ इक्वल टू PR। यहां पे ही समझ में आता है कि PQR आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, मतलब PQR के दो साइड इक्वल है। ओके, अब कौन से दो साइड इक्वल है वो भी गिवन है यहां पर, PQ इक्वल टू PR। अब कहां है PQ? दिस इज PQ, दिस PQ इक्वल टू दिस PR। ये दो साइड इक्वल है, तो आप ऐसा शो भी कर सकते हो ऐसे दो लाइन देकर, यहां दो लाइन है यहां दो लाइन है, मतलब ये दो साइड इक्वल है। ओके, हेलो, समझ में आया इतना? ये दो साइड इक्वल है। और आगे क्या लिखा है, S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। QR मतलब ये वाला होता है, ये देखो Q से लेकर R तक ये जो पॉइंट है S, इस QR का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट है मतलब ये सेंटर में है। हेलो, दिस इज द मिड पॉइंट मींस दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सेगमेंट QR। नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सेगमेंट QR मींस अगर ये सेंटर है तो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक ये दोनों सेम हो जाएंगे। हेलो, समझ में आ रहा है क्या आपको? कोई जवाब नहीं आ रहा है? मैंने क्या कहा, पॉइंट S लिखा है यहां पर, देखो S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। जो पॉइंट S है इस QR का मिड पॉइंट है, मतलब मिडल में है। मिडल में है इसका मतलब ये जो लाइन है इसके बिल्कुल बीचों बीच है, यानी ही ये और ये डिस्टेंस सेम है, ये इसका मतलब होता है। समझ में आया? Yes समझे sir. क्या? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो अगर मैंने कहा कि मैं सेंटर में खड़ा हूं, मतलब चारों ओर से डिस्टेंस सेम ही रहेगा ना। अगर आप कहते हो कि यहां पर एक लड़का है A नाम का, यहां एक लड़का है B नाम का, और बीच में अगर समझो आप खड़े हो, ठीक है, यहां पर A नाम का लड़का है, यहां पर B नाम का लड़का है, और अब बीचों बीच आप खड़े हो। आपने कहा कि मैं सेंटर में हूं, आप सेंटर में हो मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? सेम रहेगा। सेम ही रहेगा ना, सेम रहेगा ना। Same कभी है. कहोगे कि मैं बिल्कुल एकदम सेंटर में हूं, मैं दोनों के बिल्कुल मिडल में हूं, ऐसा कह सकते हो आप? जब ये पॉइंट मिडल में है, मिड पॉइंट है, मतलब ये Q से लेकर S तक, QS और SR ये दोनों डिस्टेंस सेम हो गए, इसका मतलब। ओके, ठीक है, यहां तक समझे? Yes, sir. अब देखो हाँ, yes, क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हियर, ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PRS, ये आपको शो करना है। ये क्या करना है, शो करना है। इस ट्रायंगल PQS ट्रायंगल PRS, लिसन हियर,
Now I am writing the question here. First question. Your first question यहां लिखता हूं मैं, ठीक है. Is triangle PQS, is triangle PQS congruent triangle PQR, नहीं PRS, PRS, PQS triangle PRS, okay. And one more question is there, angle Q equal to angle R, angle Q is angle Q equal to angle R, ये अभी क्वेश्चन है. Now listen here. These two questions are here. क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपको कि ट्रायंगल PQS, वेयर इज PQS? PQS मींस कौन सा ट्रायंगल फॉर्म होता है? ये वाला, P से लेकर Q, Q से लेकर S और S से लेकर ये जो ट्रायंगल है इस साइड का, ये PQS हुआ. अनदर ट्रायंगल PRS, PRS ये ट्रायंगल हुआ. सर हाइपोटेनस ट्रायंगल. ठीक है, यहां देखिए पहले, लिसन हियर. समझ में आ रहा कि आप डायग्राम को ही देखते रहो तो समझेगा. अगर आपका ध्यान इधर उधर भटका तो ये समझता नहीं. और अगले साल आपको ये है, नेक्स्ट ईयर है ये, ठीक है. और ये आपको 9th में भी रहेगा, 10th में भी रहेगा, ये आगे चलकर इसका ही काम है अभी. तो ये समझना बहुत जरूरी है. ये बेसिक है, ये बेसिक समझ में आया तो आपको आगे समझ में आता, नहीं तो कुछ नहीं समझता. तो डायग्राम को ही देखते रहो, आप कुछ भी मत लिखो, ठीक है. देखो मैं क्या यहां पहले देखिए, इस ट्रायंगल PQS आपको समझना चाहिए कि ये PQS है. ट्रायंगल PRS मतलब ये ट्रायंगल PRS ये है, मतलब इधर एक ट्रायंगल है उधर एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल हो गए, ठीक है. सर दोनों हाइपोटेनस है. सुनो पहले, ये ट्रायंगल PQR के अंदर दो ट्रायंगल है, एक का नाम है PQS, दूसरे का नाम है PRS. आप इसको PSQ भी पढ़ सकते हो, PS इधर R भी पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ टू रीड इट. ओके, दो ट्रायंगल समझ में आए अलग अलग. अब आगे देखिए, ये जो दो ट्रायंगल है डिफरेंट ट्रायंगल, इस ट्रायंगल PQS कांग्रुएंट ट्रायंगल PRS, क्या ये दोनों कांग्रुएंट है? ये क्वेश्चन है. Yes, क्या ये दोनों कांग्रुएंट है, यानी ही क्या ये दोनों इक्वल है, ये पूछ रहे हैं. अब इक्वल है या फिर कांग्रुएंट है, ये बताने के लिए हमें चारों में से एक टेस्ट यूज करनी है. कौन सी टेस्ट यूज करनी है? देखो, अभी चारों में से एक टेस्ट यूज करनी है. तो पहले हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं कि क्या क्या कांग्रुएंट है. तो सबसे पहले यहां पर एक बात दी है, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा हो तो वहां लिखा है, और जो भी आप लिखोगे इसमें रीजन के साथ लिखना है. ओके, एवरीथिंग यू हैव टू राइट विथ रीजन. यू कैन गेट द मार्क्स ऑफ रीजन ओनली. आपको रीजन के ही मार्क्स दिए जाते हैं. देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखा है, ट्रायंगल PQR इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल विथ PQ इक्वल्स टू PR. ये दिया हुआ है, देखो PQ इक्वल्स टू PR ये दिया है. सेगमेंट PQ इक्वल्स टू सेगमेंट PR. Yes, sir. ये मैंने लिखा है यहां पर सेगमेंट, ये सॉल्यूशन है. दिस इज द सॉल्यूशन. segment PQ equal to segment PR. Why we can say that segment PQ equal to PR? Segment PQ means this one and segment PR means this one. Why we can say that segment PQ equal to PR? Tell me. सर क्योंकि वो वहाँ पे दिया है. Very good. वहां पर दिया है, given. This is given. So write down the reason. This is given. मैंने reason लिखा, given. वो given है इसलिए मैंने लिखा, अपने मन से नहीं लिखा मैंने कोई इसमें, ठीक है. Now next, अब इसका और कोई कंपोनेंट है जो आप इक्वल दिखा सकते हो या इक्वल बता सकते हो किसी ना किसी रीजन के साथ, बताइए. दोनों ट्रायंगल चिपके हुए हैं, ये ट्रायंगल है, दोनों चिपके हुए हैं. जैसे घर होता है ना, दीवारें चिपकी हुई रहती है, इधर उधर रूम रहते हैं, कॉमन दीवार रहती, वैसे ये दीवार है. और बताइए इसमें क्या और सर ये दोनों हाइपोटेनस है. सर दोनों हाइपोटेनस है. दोनों हाइपोटेनस है. कब बता सकते हैं आप? व्हेन वी कैन से दैट टू देयर आर हाइपोटेनस? when in the middle the हाइपोटेनस कहाँ होती है? डायगोनल. हाइपोटेनस कहाँ होती है? कौन से ट्रायंगल में होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा कहीं लिखा है क्वेश्चन में? नहीं.
या कोई यहाँ पर कोई एंगल दिखाया है 90 डिग्री का है करके? नहीं फिर आपने कैसे समझ लिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल और इसमें हाइपोटेनस है? फिर आप कैसे कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है? बताइए। ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, डायगोनल है। सुनो, ऐसा कुछ लिखा हुआ भी नहीं है और ना ही यहाँ इस डायग्राम में कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, इसलिए आप इसे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं समझ सकते। समझे? समझ में आ रहा क्या? ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। हेलो, अच्छे से सुनो, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहां क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। यहां क्वेश्चन में इतना ही लिखा है कि दिस इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल, नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ये लिखा है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा लिखा नहीं है। दूसरी बात, यहां कोई ऐसा कॉर्नर बना है जो 90 डिग्री रिप्रेजेंट करता हो, ऐसा है आपके डायग्राम में? बताइए। अरे है क्या? नहीं। आपने कैसे कह लिया कि ये, कैसे कहा आपने कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है? ठीक है, ऐसा कुछ भी यहां नहीं है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो ये है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी राइट एंगल होते हैं, लेकिन ऐसा यहां कुछ मेंशन किया नहीं है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज नॉट द राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो, मैंने लिखा यहां पर सेगमेंट PQ इक्वल टू सेगमेंट PR, सेगमेंट PQ इक्वल टू सेगमेंट PR, क्योंकि ये रीजन लिखा मैंने, गिवन, ये दिया हुआ इसलिए मैंने लिखा। और कुछ इसमें बताइए क्या दिया है, बताओ। सर QS and RS, हाँ, QS and RS, QS एंड RS, वेरी गुड। ये एक सेगमेंट है, देखो ये ट्रायंगल अलग है, वो ट्रायंगल अलग है। इसके साइड देखो, ये ट्रायंगल जो है इसके साइड 1 2 3 और ये ट्रायंगल के साइड 1 2 3, ये तीनों के 3 साइड है, दोनों के लिए ये साइड कॉमन है। ठीक है, सिर्फ अब देखो, आपने बताया QS इक्वल टू SR और फिर RS बोल सकते हैं आप। सेगमेंट QS इक्वल टू सेगमेंट कौन सा? RS। आप SR लिखो या RS लिखो, बात एक ही है। Why we can say that segment QS equal to segment RS? Can you tell me the reason? Reason is must. Yes, sir. हाँ, yes, tell me the reason. Sir, because S is the point. Sir, because S is the midpoint of Q and R. Huh? Sir, because S is the midpoint of Q and R. Because S is the midpoint, आपको वही लिखना है, S is the midpoint। यहाँ लिखता हूं S is the midpoint। ठीक है, ये दिख नहीं रहा इसलिए मैंने नीचे लिखा, आप सामने लिखिए। ठीक है, बिकॉज S इज द मिड, ये मिड पॉइंट है इसलिए ये सेम और ये सेम हो गए। ओके, ये रीजन है। और कोई बताओ, क्योंकि 3 कंपोनेंट चाहिए आपको लिए, आपके लिए। अब देखो, ये भी साइड है, ये भी साइड है ना? हेलो हेलो, सुनो इधर, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो कौन सी टेस्ट, 2 साइड वाली कौन सी टेस्ट है? देखो आप, 2 साइड जिसमें 2 साइड है, उसमें 2 टेस्ट है। देखो, एक पहली टेस्ट है ट्रिपल S, जिसमें 2 साइड आए हैं। PS is equal to, हेलो, 2 टेस्ट है जिसमें 2 साइड आते हैं, तो पहली टेस्ट है ट्रिपल S और एक दूसरी भी टेस्ट है जिसमें 2 साइड आते हैं और एक एंगल आता है। तो 2 साइड तो आ गए, समझ में आ रहा है कि? इधर ही ध्यान दो, नीचे मत देखो आप। ठीक है, 2 साइड तो आ गए। अब तीसरा, एक तो साइड हो सकती है या फिर एंगल हो सकता है। समझे? समझ में आ रहा ना? क्योंकि 2 ही टेस्ट है जिसमें एक टेस्ट, पहली टेस्ट है ट्रिपल S और दूसरी टेस्ट है SAS में 2 साइड है और एक एंगल है। मतलब एक तो पहली टेस्ट हो सकती है या फिर दूसरी टेस्ट हो सकती है। तो पहली टेस्ट बनाने के लिए साइड दिखनी चाहिए और दूसरी टेस्ट बनाने के लिए एंगल दिखना चाहिए। अब एक तो साइड या फिर एंगल, 2 में से कुछ तो भी यहाँ है, तो क्या है? ढूंढो जल्दी, क्या है दोनों में से? साइड या फिर एंगल है? कांग्रुएंट है। Angle is equal to angle R. angle एंगल Q is equal to angle R. एंगल Q इक्वल टू एंगल R, आप कैसे कह सकते हो? ऐसा कुछ गिवन नहीं है। रीजन बताओ, रीजन बताओ। आपने कहा ना रीजन, रीजन बताओ मुझे, Q इक्वल टू R क्यों है?
अरे Q इक्वल टू R तो आपको शो करना है, बताना है क्या ये इक्वल है। आप तो आपने पहले ही बता दिए Q और R इक्वल है, वो तो हमें दिखाना है। देखो ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, इज एंगल Q इक्वल टू एंगल R, वो पूछ रहा है। और यहाँ आप लिख लोगे Q और R इक्वल है, कैसे लिखोगे, रीजन क्या है? Side is given S is because midpoint. PQ and हाँ? PRS is equal to Sir, S is QS. dividing them in half. क्या? Sir, हाँ, S is dividing them in half. S is S is dividing them in half. डिवाइडिंग इन हाफ, तो S किसको हाफ में डिवाइड कर रहा है? तो आप ये तो हमने लिख लिया ना, QS इक्वल टू सर हो ही गया वो। Sir, PQS लिसन टू मी, congruent to PR, लिसन ईयर, Q and R equal. इधर ध्यान दो आप, इधर उधर मत देखो, यहाँ देखो, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप एंगल नहीं दिखा सकते, रीजन नहीं है आपके पास, तो आपका तीसरा क्या है? अगर एंगल नहीं दिखा सकते तो सेकंड प्रॉपर्टी इसमें ड्रॉप हो गई। अब एक ही प्रॉपर्टी बची है ना, कौन सी? पहली वाली, ट्रिपल एस। मतलब यहाँ पर साइड, हेलो, मतलब यहाँ साइड इक्वल है, समझ में आया क्या? हाँ। मतलब यहाँ साइड इक्वल है। अब साइड कौन सी वो ढूंढना है आपको, बस इतना ही, कितना सिंपल है। साइड कौन सी इक्वल है? देखो ना, दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन साइड यही है ना, पीएस। आप लिख सकते हो ना, पीएस, पीएस इक्वल टू पीएस, लिखो। दोनों के लिए एक ही तो साइड है, इसका रीजन है कॉमन। हाँ सर। कॉमन साइड है ये, दोनों के बीच में एक ही दीवार है, कॉमन दीवार है, तो वो तो इक्वल रहेंगी ना। उसको खुद को तो कॉमन, देखो पीएस खुद को ही कॉन्ग्रुएंट रहेगा ना, इसको इक्वल यही साइड है, तो ये कॉमन साइड हो गई। मतलब ये जो साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए एक ही साइड है, ये इसके लिए इक्वल है, ये इसके लिए इक्वल है, और ये खुद के लिए इक्वल है, मतलब तीनों भी साइड है। समझे क्या? हेलो, हाँ सर। हाँ, तीनों साइड इक्वल है। तो अब आप लिख सकते हो, देखो ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, और तीनों के मैंने रीजन भी लिखे हैं, रीजन विथ रीजन। तो अब आप लिख सकते हो ये वाला, देखो, देयरफॉर कौन सा? ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कौन सा? PRS। मैंने कॉन्ग्रुएंट लिख दिया यहां पर, रीजन है मेरे पास, साइड साइड साइड, कौन सा? बाय ट्रिपल एस टेस्ट, ट्रिपल एस टेस्ट, TEST लिखिए, बाय ट्रिपल एस टेस्ट। ये हुआ आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। अभी यहां लेंगे B, सेकंड, ठीक है, लिखो। ट्रिपल एस टेस्ट, टेस्ट मैं नीचे लिखता हूं, ट्रिपल एस टेस्ट। अंडरस्टूड? और समझा क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके गुड, समझ में आया? समझा सर। ओके गुड, राइट डाउन। सर स्क्रीनशॉट निकल के रख दी। हाँ लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ओवर। हेलो, अभी बहुत सिंपल रीजन है, इसके लिए कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। देखो यहां पूछा है इज एंगल Q इक्वल टू R, तो आप लिख सकते हैं एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R, लेकिन रीजन इज मस्ट। रीजन क्या रहेगा? देखो रीजन बता दूं मैंने कहा था ना आपको, एक बात मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां लिखा, आपने लिखी है एक बात, क्या बात लिखी है आपने? देखो एक इटैलिक में लिखा है, एडिशनली इफ वी फाइंड दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट using the above condition, means above test, then their corresponding parts will also be congruent. ले लो, हमारे 10 मिनट का ब्रेक भी ले लो। ठीक है, किसी ने 10 मिनट का ब्रेक लिया है, मतलब उसने क्लास अटेंड नहीं किया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉस उसी का होगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? अभी जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा उसका मीनिंग बता रहा हूं। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर दो ट्रायंगल, अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होते हैं? ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स तीन होते हैं, 3 एंगल और 3 साइड। ठीक है, हेलो,
पहले ट्रायंगल के 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड से करस्पॉन्डिंग होते हैं और फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों एंगल सेकंड ट्रायंगल के तीनों एंगल से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर किसी ने पूछा कौन से हैं, तो एंगल्स और साइड ये हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं इसके एंगल्स। अब क्वेश्चन ये पूछा है ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या, तो हमने लिखा है यस, एंगल Q इक्वल टू एंगल R बिकॉज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। रीजन क्या है, दीज आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ शॉर्टकट में लिखता हूं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका रीजन उतना ही लिखना है, कुछ भी उसके लिए सॉल्व नहीं करना है। ओके, राइट डाउन। यस सर। कोई भी ट्रायंगल में एंगल है, कोई भी इसमें, क्या तो वी हैव टू राइट देता है जवाब। हाँ, लिसन हियर, अगर आपने ट्रायंगल शो कर लिए, समझो आपने ट्रायंगल शो कर लिए कि दोनों ट्रायंगल इक्वल है यानी कॉन्ग्रुएंट है, तो आप उसके कोई भी एंगल, जैसे अगर मैंने पूछा आपको कि एंगल इधर से ये ट्रायंगल QPS और RPS, तो ये P इसको कॉन्ग्रुएंट है क्या, तो आप लिख सकते डायरेक्ट कि वो कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर किसी ने ये पूछा, अगर समझो कोई भी टेस्ट से आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बता दिए और किसी ने पूछा क्या ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है क्या, तो आप लिख सकते यस दिस साइड इक्वल टू दिस बिकॉज CPCT। बस हो गया, आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताया मतलब उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना। एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताए कि बाकी के पार्ट्स आप कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो बाय द रीजन ऑफ CPCT। ओके, साइड भी अगर दिखाओगे तो रीजन वही रहेगा, एंगल भी दिखाओगे तो रीजन वही रहेगा। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम बताता हूं आपको। ये हो गया SSS टेस्ट का, SS टेस्ट का भी यहाँ प्रॉब्लम है। सर हाँ बोलो। सर, अगर ये ऐसा एंगल्स का कोई भी अगर क्वेश्चन में पूछा है कोई भी ट्रायंगल्स में, so the answer will be same CPCT। यस, सेम CPCT रहेगा। सर एक बार बताओ CPCT मतलब? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इसका मीनिंग है, आप चाहे तो लिख के रख सकते हो। सर बताओ इसके लिए क्वेश्चन भी है आगे चलकर, आपको पेज नंबर 198 पर, पेज नंबर 198 निकालो, पेज नंबर 198, पेज नंबर 198 निकाले। निकाले एक्सरसाइज 15B, एक्सरसाइज 15B, ठीक है, निकाले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का D, क्वेश्चन फर्स्ट का D, दो मिनट बचे हैं, मैं आपको फर्स्ट का D बता रहा हूं, यही टेस्ट यूज होने वाली है। देखो, देयर आर टू ट्रायंगल्स ABC एंड XYZ। ये इरेज कर रहा हूं। सर पेज नंबर क्या बोले? एक्सरसाइज निकालो 15B, पेज नंबर 198। देखो 2 ही मिनट बाकी है, मैं अभी फटाफट बताता हूँ। ये यहां पर इस तरह की डायग्राम है। द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल इज ABC एंड अनदर ट्रायंगल दैट इज XYZ। ये इस तरह का है, XYZ, X, Y और Z। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो यहाँ पर सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन यहाँ है और दूसरी सिंगल लाइन यहाँ है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये साइड इस साइड को कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। डबल लाइन कहां पे है, देखो यहाँ पे है डबल लाइन और यहाँ पे डबल लाइन, मतलब ये साइड इस साइड को कॉन्ग्रुएंट है।
यहाँ ट्रिपल है और यहाँ पर ट्रिपल है, मतलब ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है। अंडरस्टूड? हेलो, यस सर। डायग्राम ऐसे ही रहेंगे Yes, एग्जाम sir. में, और क्वेश्चन वो रहेगा जो ऊपर लिखा है। क्या रहेगा? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, स्टेट आल्सो द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाइड इन ईच केस। मतलब आपको ये बताना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या, अगर है तो कौन से रीजन से, कौन सी टेस्ट से। ठीक है, तो यह सब दिख ही रहा है, डायग्राम में ही दिख रहा है कि ये सिंगल है, यहां सिंगल लाइन है, मतलब ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड, ये साइड इसको इक्वल है, ये साइड इसको इक्वल है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। मतलब साइड साइड साइड, कौन सी टेस्ट आती है इसमें? साइड साइड साइड, कौन सी टेस्ट आएंगे? हाँ? एस कौन सी टेस्ट आती? अरे क्या रही तो टेस्ट है। सर, साइड साइड साइड। हाँ, साइड 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 टेस्ट आएंगे, यानी ट्रिपल एस। अब देखो लिखना क्या है, इन ट्रायंगल, देखो लिखना कैसे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल